Asghar series and the information that he's been providing. Today's lecture that he gave on, especially, it was something I was thinking about all day and how I can portray it to the community as my concerns as being part of the Madrasa over the last 2 years. The biggest issue that we come across is disengaged families. And Alhamdulillah, Ali Asghar beautifully explained the value, the importance of the family. I just wanted to take it from I don't have the same eloquence as Ali Asghar has, but my method's a little bit more crude. So everybody at the moment here has a family. Now you may be thinking that's you, but those children nowadays growing up have a different family, one that you don't see, one that is invisible to your eyes. You go home, your children go home with you, but those children aren't there with you. And we see this on a daily basis. The father, unless he has an active role, is not the father of that child. The mother, if she doesn't have an active role, is not the mother of that child. Those siblings don't play that role, they are not. Each of these children, and this is what we're finding day by day, and ask yourself, especially I'm focusing this at the parents. If your child has a phone, has a PlayStation, has a DS, has a Netflix account, whatever he has his own family. The less you are active, the more that child builds a family outside that you've never seen. Never seen. If I was to tell you right now in the playground your child is playing with somebody who's a pedophile, somebody who you would never ever allow your child to go close to, you would do everything in your power to get your child away from such bad company. Yet, we allowed every moment of our day for our child to spend time with those people which we don't know who they are, where they've come from. They then take their phones from their living room up into the bedroom. They spend their whole time on this. Now we have this next generation is going to have difficulties beyond your understanding. Through people that I've been discussing this with, the only advice I can give you is, first of all, please take an active interest in your children's lives. Stop throwing them to distraction. Stop throwing to nothing because you are busy with your distraction. Your child can be speaking to somebody somewhere across the world. You have no idea who it is. That person is his family, not you. Please gain control of your family support, your family. Secondly, regarding the madrasa itself, I would humbly advise, and again, please don't take this wrongly. This conversation had many, many times. Please stop sending your children to a madrasa unless you are willing to change. Stop confusing these children on a day-to-day basis. Every day we battle with these children. We are thinking these children are not behaving, not obedient. But it's not their fault. I'll give you an example. If there is no salah at home, how torturous does a madrasa look that says salah is primary? Agha Ali Asghar has been driving on about Quran recitation over the last 10 days. How torturous is that for a child that doesn't have any Quran recitation at home? What are we doing? The madrasa is not here to give hadayat. All the madrasa does is amplifies your personal life, your family life. That's all it does. So for example, if there's salah taking place at home,
When the child comes here, he's at peace. He's at harmony. If there's no salah at home and you send a child here, the child can't wait to leave the madrasa. And the chances are that child will grow up to detest madrasas. So please be engaged. This is the most difficult time, difficult era, because you are dealing with an enemy you cannot see. Lastly, to enhance this point, if you don't know, and this is a big issue, we are all self-independent, nobody talks to anybody. Be part of this community. If you can't find a dars community near yourself, please join Masjid-e-Ali. Be part of these people that are standing here and working, and ask them and tell them your problems. Tell them and sit them and let's work them out together. Be a community. Stop depriving your children of a community. No, it's not perfect. By far, they have so many problems. But it's a community that you can work with. And hopefully tomorrow, your children will have a community. Or tomorrow, your children will be somewhere outside, lost, and they'll be amongst their own brothers and still feel alone. So please, I plead with you, more than anything else. I thought in the morning first I was going to talk about admission. Inshallah, for those parents that want admission, a link will be sent shortly. Alhamdulillah, Brother Abid has helped to try to get Quran classes over here from Tuesdays to Fridays, 5 to 6:30. There, I've done my job. The rest is up to you. You can send your child here, let him learn Quran, send him to Madrasa. But if you as a family are not engaged in this, please stop torturing your children. My apologies if I've offended anybody. Assalamu alaikum. माशाल्लाह, थैंक यू सैयद इमरान। एक बार फिर बुलंद आवाज़ से सलावत अनायत कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जल फरजहुम वरज़ुक़नी शफ़ाअतहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह। जी, मेरे पास एक ये हुक्म है, हमारे कम्युनिटी के हैं, अभी भाई मेरे पास आए थे, आगा दिलावर हुसैन रूहानी। इनको खुदा की मर्ज़ी और उसने अपने इम्तिहान में डाला, इनको स्टेज 3 कैंसर है और इनकी सेहत के लिए उन्होंने इंतहाई मुनकसर तरीके से दरख्वास्त की है। तो 3 मरतबा इंशाअल्लाह अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा का आप विर्द कर लें और उसके बाद इंशाअल्लाह सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। सलावत बर मोहम्मद। मैं बस इसके फ़ौरन बाद दरख्वास्त करता हूँ सईद राहत से, वो चंद लम्हों के लिए कहेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह आगा तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हम दरख्वास्त गुज़ार होंगे इंशाअल्लाह। सईद राहत प्लीज़। जज़ाकुमुल्लाह। जी बिल्कुल ठीक, जी बिस्मिल्लाह। नहीं बिल्कुल ठीक है। वर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम। Quick update on the fundraising. We have had a target of 22,500. Alhamdulillah, one of the brothers has donated £5,000 towards the building project. And he has asked for dua for himself and for his family. We all pray the Khaliq-e-Kainat bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, उनको सैयद तौकीर शाह साहब को और उनकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खालिक-ए-कायनात उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। खालिक-ए-कायनात उनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए
और उनके ख़ानदान के जितने भी बीमार हैं सबका बीमार करबला अलैहिस्सलाम का उनको शिफाए कामला अता फरमाए। एक दो और दुआ की भी रिक्वेस्ट की गई है। हमारे अहले सुन्नत के बिरादरान जो मजालिस अटेंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद-ए-आली में, उनमें से हमारे भाई हैं कि जहाज़ैब आसिफ, they have put their illness, but I'm struggling to mention it. They have brain damage, so they've asked for दुआ शिफा। हम खालिक कायनात से दुआ गो हैं कि खालिक कायनात बिहक़ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, बिहक़ मौला अली अलैहिस्सलाम, बिहक़ अहल बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम उनको शिफाए कामला अता फरमाए। एक और भाई है हमारे राजा ज़फ़र और उनकी तमाम फैमिली, उनके लिए भी दुआ गो हैं खालिक कायनात उनकी तमाम शरई जायज़ हाजात अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और उनकी फैमिली पर अपनी खुसूसी रहमत व बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाह। For the building project, as I've mentioned at the start, we have roughly under £3,500 still left to raise. If any of the brothers or the sisters still hasn't donated, please donate in the name of Ahlul Bayt, in the name of Mawla Hussain alayhi salam. We have until tomorrow to reach our target. And I'm sure with your cooperation, inshallah, we can reach that target. If anyone that hasn't donated, as I requested yesterday, £100 per person or £50 per person that are present here, if you donate that amount, inshallah, we can reach that target quite easily. There is also one more thing that I mentioned last year for the first time as a suggestion to all of us, including myself. 2 years ago, I thought about this and realized this, that any one of us that is working in a 9-to-5 job, they obviously take a day off at least on the Ashura day. But what we don't realize is that we still get paid for that day. So that holiday is included in our yearly package. So if you wish, you could donate that day's income, salary of that day that you've taken off for the Ashura, you can donate that towards Masjid-e-Ali building project. And if all of us, inshallah, that are working 9-to-5 jobs, if we donate that one day's salary to Masjid-e-Ali, inshallah, we can reach our target easily. My apologies for these requests on this day, but this is something that we have as a responsibility of. ये मस्जिद आप तमाम मोमिनीन की आपके ताउन से चलती है और इसमें आप जितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, खालिक के कायनात अहले बैत के सदके आपका उधार नहीं रखेगा। हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा सबका यकीन है कि अहले बैत के सदके में है। हम इस काबिल नहीं हैं कि जितना खालिक के कायनात ने हमें अहले बैत के सदके अता फरमाया है। आपका यहाँ पर इस दर पर चल के आ जाना इस बात की गवाही है कि आप अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत के गम में गम मनाने वाले हैं। Lastly, if anybody still has to pay their last year's membership, we had extended the date to the end of July, 31st of July. You are still able to pay that last year's membership. You would have received all the letters posted to your houses as well. So if you have any outstanding payment, or if you would like to pay this year's membership, please do so. We have collection desk, finance team in the men's reception and also in the ladies reception. खालिक कायनात आप तमाम मोमिनीन की आज़ादारी इबादत कबूल फरमाएं। और मैं इस जुमला कहने से हमेशा हिचकिचाता हूँ कि हमारी मैनेजमेंट की मेरी ये औकात नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ हमारे उलमाए कुराम का जो मुहर्रम हराम के इन दिनों में अहलुल बैत अलैहिमुस्सलामात की तालीमात हम तक पहुँचाते हैं। लेकिन हमारी तरफ से हम दुआ कर सकते हैं क़िबला आपके लिए, क़िबला ग़ुलाम शबीर नकवी अल नजफ़ी साहिब के लिए, and for the brother Ali Asghar Khimani. We have thoroughly benefited from your lectures, alhamdulillah, and may Allah subhanahu wa ta'ala increase your tawfiqat. आपकी तौफ़ीक़ात खैर में खालिक कायनात इज़ाफ़ा फ़रमाए और आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। पर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत।
इंशाअल्लाह अब आगा से मैं दरख्वास्त करता हूँ, अगर क्योंकि वक्त थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, अगर मगरिब में थोड़ी सी ताख़ीर हो जाए तो इसको बुरा ना मनाइएगा। इंशाअल्लाह मजलिस के फ़ौरन बाद मगरिबैन की सलात की जाएगी। आपकी बुलंद तरीन सलवात के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ आगा शबीर नजफ़ी से, इंशाअल्लाह वो आते हैं। जिंदाबाद मर्दाबाद मर्दाबाद अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुहजहम दूनल हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। अपनी अपनी दुआओं अपनी अपनी इबादत की कबूलियत के लिए भी बाआवाज़े बुलंद सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मलऊनीन मिन यौमे अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु
फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा सअलका इबादी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवतद्दाइ इज़ा दआन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से। खालिक कायनात आपकी इबादत को कबूल फरमाए। खालिक कायनात किसी तरह से भी जिसने मजलिस में शिरकत की है खिदमत हुसैन के लिए, खालिक उसकी खिदमत को अपनी इबादत में शुमार फरमाए। मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। ये रातें ऐसी रातें हैं जिसमें हर मोमिन के दिल में होता है कि वो मज़लूम करबला का वास्ता देकर जो मांगेगा उसको अता होगा। तो दुआ करें। शाह साहब ने दो नाम जहांगीर साहब, सैयद जहांगीर शाह साहब और सैयद वजाहत साहब मरीज हैं। या अल्लाह तुझे बीमार करबला का वास्ता उनको शिफाए कामला व आजिला अता फरमा। मेरा अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। बिलखुसूस सैयद हैदर शाह साहब और सैयद आदिल साहब को औलाद नरीना अता फरमा। एक और बच्ची के लिए दुआ के लिए कहा गया है, वो बच्ची अपने वालिद से दूर है। या अल्लाह उसको अपने वालिद से मिला। मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। टाइम नमाज का बहुत करीब आ रहा है। चंद एक बातें आपसे करनी हैं। वो मेरी बातें नहीं हैं, किसी इंसान की बातें नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह की बातें हैं। खालिक कायनात जो मेहरबान है, कादिर मुतलक है और रहमान और रहीम है, वो अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को मुखातब होकर इरशाद फरमा रहा है, इज़ा सअलका इबादी फ़इन्नी क़रीबुन। मेरा हबीब, मेरा मुस्तफ़ा, जब तुझसे लोग सवाल करें मेरे बारे में, यानी अल्लाह के बारे में, तो उनको जवाब में कहना कि मेरा अल्लाह फरमा रहा है फ़इन्नी क़रीबुन, मैं अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब हूं, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। और फिर आयत के अगले जुमला में फ़इन्नी उजीबु दाअवतद्दाइ इज़ा दआन, खालिक फरमा रहा है मेरे बंदों को ये भी बता दे, उन तक पैगाम पहुंचा दे कि खालिक फरमा रहा है कि जब ये मुझे पुकारते हैं, मुझसे कुछ मांगते हैं, तो मैं इनकी पुकार का जवाब देता हूं। मेरे बंदे हैं। और फिर वही खालिक एक और आयत में इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझ करीम रब से मांगते रहो, मैं तुम्हें अता करता रहूंगा। मेरा काम है अता करना, तू मांगता जा, मैं तुझे अता करता जाऊंगा। और फिर हमारे आइम्मा ताहिरीन ने हमें अल्लाह से मांगने का ढंग बताया है। मेरे और आपके चौथे इमाम
इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन फरमाते अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में, इलाही आना अब्दो का व फकीरुन इलैका जिअतो इला बाबिका व कअतो व जलस्तो। इमाम मासूम फरमा रहे हैं, मेरा अल्लाह, मैं तेरा अब्द हूं, मैं तेरी तरफ मोहताज हूं, मैं तेरे दरवाजा पे आ गया। अब तेरे दरवाजा से मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, और अगर तूने खाली हाथ मुझे लौटाना है, तेरी अपनी मर्जी है, दे तब भी मैं राजी, ना दे तब भी मैं राजी। तेरा जो भी फैसला है मैं उसको मानता हूं, लेकिन जब तू नहीं देगा ना, मुझे इतना बता दे कि मैं किसी और दरवाजा पे चला जाऊं। तवज्जो है ना, मैं किसी और दरवाजा पे चला जाऊं, लेकिन मेरा अल्लाह, मैं जानता हूं तेरे दरवाजे जैसा कोई और दरवाजा नहीं है। इसी दरवाजा से सब कुछ मिलता है, और किसी साइल को अल्लाह करीम है ना, रद्द नहीं करता। कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अपने बंदों से कितनी मोहब्बत है उस खालिक को। फरमाता है, ए मेरा बंदा, ए इंसान, कौन सी चीज है जिसने तुझे धोखा देकर मुझ जैसे करीम रब से दूर कर दिया है। मेरे करीब आके देख, मेरी रहमत को देख, मेरी मेहरबानियों को देख। और फिर एक आलिम दीन का जुमला है, फरमाया करते थे कि बंदा परेशान हो जाता है ना, गुनाहगार होता है, नाफरमान होता है, आवाज़े तौहीद आती है, ऐ बंदा मेरे दरबार में लौटा, तू अपनी नाफरमानियों को मत देख, मुझे अल्लाह की मेहरबानियों को देख। मैं कितना मेहरबान हूं, मुझे तुझसे मोहब्बत है। देखिए फिर खालिक के कायनात ने आपको, जो हुसैन के मानने वाले हैं, एक और आयत में फरमाया, बल्कि तमाम अहले ईमान को फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो और मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला भी लेके आओ। वसीला भी तुम्हारे पास होना चाहिए। अब हम तन्हाई में, खालिक फरमाता है, आते हुए, अकेले आते हुए तुझे घबराहट होती है ना, मैंने तुझे 14 वसीले अता किए हैं, उनको साथ लेता मांगता जा, मैं तुझे अता करता जाऊंगा। या मांगता जा। और फिर देखिए हुसैन की मां, मासूमा मां सैयदा फातिमा ज़हरा, एक रिवायत में मैंने पढ़ा था कि मोमिन जब दुआ करने लगता है ना, हाथ दुआ के लिए बुलंद करता है और कहता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के फातिमा बिनते मोहम्मद। ऐ अल्लाह, मैं साइल बनकर आया हूं तेरी बारगाह में, तुझे मोहम्मद मुस्तफा की बेटी फातिमा का वास्ता दे रहा हूं। जब ये कलिमात कहता है ना, बीबी का नाम अपनी जबान पे जारी करते हुए अल्लाह की बारगाह में उनको वसीला बनाता है। रिवायत में मिलता है, मोहम्मद मुस्तफा सुनते हैं, कौन है मेरी बेटी फातिमा का नाम लेकर अल्लाह से मांगने वाला। ऐसे हाथ बुलंद करते हैं,
अली मुर्तजा जब सुनते हैं कौन है मेरी ज़ौजे मासूमा का नाम लेकर अल्लाह से मांगने वाला, वो भी हाथों को बुलंद करते हैं। फिर हसनैन शरीफैन सुनकर कौन है हमारी करीमा मां का नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में सवाल करने वाला। जब आगे बंदे खुदा मांगता है अल्लाह से कोई चीज भी या हाजत तलब करता है, पंजतन पाक हाथ बुलंद करके आमीन कहते हैं। और जहां पे ये पंजतन पाक आमीन कह दे वहां पे अल्लाह दुआओं को रद्द नहीं करता, अल्लाह जरूर कबूल कर लेता है। आपके पास मोहम्मद की बेटी जैसा वसीला है, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। कोई भी मुश्किल आ जाए उलमा फरमाते हैं सैयदा ज़हरा के नाम की मन्नत मान ले, अल्लाह आपकी मुश्किलों को हल फरमाएगा। और फिर सैयदा कितनी मेहरबान है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रात का टाइम होता था, मेरी मां मुसल्ला इबादत बिछाती थी। सैयदा ज़हरा मुसल्ला इबादत बिछाकर सारी रात इबादत खुदा में मसरूफ रहती थी। इबादत करते करते नमाज शब अदा करने के बाद आपके लिए फातिमा दुआ करती थी। सैयदा ज़हरा इमाम फरमाते हैं मेरी मां ऐसे हाथों को बुलंद करके, जो अली के शिया थे उस वक्त, हर एक का नाम लेकर कहती थी मेरा अल्लाह फला अली का शिया है, उसके गुनाहों को माफ कर दे, उसकी नेक हाजात को पूरा कर दे। सबके लिए दुआ मांगती थी बीबी, अपने लिए दुआ नहीं मांगती थी। इमाम फरमाते हैं मैं अपनी मां के करीब गया, मैंने हाथ बांध के कहा ऐ अम्मा आप सबके लिए दुआ मांगती हैं, अपने लिए नहीं मांगती। तो बीबी ने अपने बेटे से फरमाया बेटा जब कोई अपने मोमिन भाइयों के लिए दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी अपनी दुआओं को खुद बखुद कबूल कर लेता है। उसको अपनी दुआएं, अल्लाह तो अलीम बिज़ात सुदूर है, मेहरबान है, वो तो जानता है कितना पाक तीनत है वो इंसान जो दूसरे मोमिनीन के लिए दुआएं करता है। यकीन करें जब खुलूस से, इखलास से, मोहब्बत से किसी के लिए दुआ मांगी जाती है अल्लाह रद्द नहीं करता है। वो खालिक खुद फरमा रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। जो अपनी मखलूक की वादा खिलाफी को कबूल नहीं करता वो हमें दुआ का कहकर वादा खिलाफी तो नहीं करेगा ना, हमारी दुआओं को कबूल कर लेगा। फिर पैगंबर फरमाते हैं अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मुमिनीन का बेहतरीन हथियार है। दुआ बंदे को अल्लाह के करीब करती है, राज़ो नियाज का मौका मिलता है दुआ के जरिए। और फिर फरमाया मासूम ने अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ जो है वो इबादत का खुलासा और नतीजा है। दुआ मांगो, और जो दुआ नहीं ना मांगता, कभी कभार ऐसा होता है हजरात नमाज पढ़ते हैं और फिर फौरी तौर पे चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ऐसे कोई करता है ना तो खालिक को मालिक उसकी पढ़ी हुई नमाज को वापस कर देता है और फरमाता है इसके मुंह पे दे मारी जाए, ये अपने आप को गनी और बेनियाज समझता है, मेरा मोहताज नहीं समझता, मुझसे कुछ नहीं मांगना चाहता, मुझे इसकी इबादत की कोई जरूरत नहीं है। ले जाए अपनी इबादत, तो दुआ जरूर मांगा करें। अल्लाह ने आपको वसीले अता फरमाए हैं। आज की रात है,
जागें, शब बेदारी करें, ज़हरा की बेटियों को पुरसा भी देते रहें। बड़ी अजीब रात है। इस शब को शब शहीदां कहते हैं और आने वाली शब को शाम गरीबा कहते हैं। एक मोमिन करबला का रहने वाला, उसने भी एक दुआ मांगी थी। दुआ क्या मांगी थी? मजलूम करबला के रोजा पे खड़े होकर कहा था, मेरा अल्लाह मुझे एक बेटा अता फरमा, जब वो 18 साल का हो जाए मुझसे वापस ले लेना। बंदों ने कहा ये पागल हो गया। कहते अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा, मेरी दुआ है करबला वालों के सदका में जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको औलाद अता फरमाए। मेरा अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा, जब 18 साल का हो जाए ना मुझसे वापस ले लेना। अल्लाह ने उसको बेटा अता किया। 18 साल का होता है, फौत हो जाता है, उसको इत्तला दी जाती है, फौरन भागता हुआ हुसैन की जरी पे पहुंच जाता है और रोने लगता है। किसी ने कहा तूने बेटा मांगा था और 18 साल की उम्र में उसकी मौत भी मांग ली तूने, ये क्या है, क्या हिकमत है इसमें? रोकर कहने लगा, मैं जानना चाहता था 18 साल के बेटे का लाशा कैसे उठाया जाता है। हुसैन ने अकबर का लाशा कैसे उठाया होगा? अज़ादारों, अकबर से बड़ी मोहब्बत थी हुसैन को। रिवायात में मिलता है 18 साल की उम्र में अकबर जब मदीना में निकलते थे ना, सैयदा ज़ैनब करीब आकर हुसैन अकबर का सदका निकालती थी। मेरा अकबर बाहर जाएगा, किसी बद नजरे की नजर न लग जाए। जब आते थे ना बाजार में हजरत अब्बास और अली अकबर, लोग खड़े होकर देखा करते थे और कहते थे हुसैन का बेटा अकबर कितना खूबसूरत है। कान वजहुहु कल कमर, उसका चेहरा मुबारक 14वीं के चांद की तरह चमकता था। अज़ादारों, रिवायात में मिलता है जब करबला से काफिला चला है ना, कूफा से शाम, कभी कभी ऐसा होता था रात के टाइम ना, जब ये आराम करते थे जालिमों के सिपाही क्या करते थे, ये सरों को एक जगह रखते थे। जब सुबह उठते थे ना तो इनको हुसैन का सर वहां नजर नहीं आता था। ये तलाश करते थे ना तो इनको हुसैन का सर अकबर के सर के साथ नजर आता था। और जब उठाते थे ना हुसैन के सर को, रोकर हुसैन कहते थे, अकबर तेरे जैसे बेटों की मौत किसी बाप के लिए मुश्किल है बर्दाश्त करना। अज़ादारों, आ गई 10 मुहर्रम। आप सुनेंगे, कोई सोचेगा मैं पढ़ लूंगा, आप सुनकर चले जाएंगे। अकबर का दुनिया से जाना लैला जाने या ज़ैनब जाने, कितना मुश्किल होता है। 10 मुहर्रम आती है, शाहजादा आते हैं अपने बाबा के सामने, देखकर कहते हैं बाबा मुझे भी मौत की इजाजत दे, मैं भी मैदान जाऊंगा, तेरा दिफा करूंगा, मैं तुझ पे कुर्बान हो जाऊंगा। अल्लाह जानता है, उलमा फरमाते हैं हुसैन ऐसे चीख मार कर करबला में कभी नहीं रोया था, ना किसी और लाशा पे ऐसे रोया जैसे अब रोया। जब अकबर ने कहा ना मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे, हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, रोकर फरमाया वाह गुरबता, ओ मेरा अल्लाह तू जानता है मुझ जैसा गरीब बाप हो, अकबर जैसा जवान बेटा मौत की इजाजत मांगने आ जाए मैं कैसे दूं।
उलमा फरमाते हैं हुसैन ने कहा अपनी मां से इजाजत लेके आ, और उस मां से भी इजाजत लेके आ जो तुझे पालती रही, अपनी फुफ्फी ज़ैनब से भी इजाजत लेके आ। अली अकबर अंदर आते हैं, अपनी दोनों माओ से मैं ऐसे कहूंगा इजाजत ली। हुसैन भी अंदर आते हैं। आजादारों, हुसैन ने अकबर को जीने जुलजना पे सवार कराया। जैसे ही सवार कराया ना, वहां पे बीबियों ने, साहिबे लवाजुल अहजान ने लिखा है, हर शहीद जाता रहा लेकिन ऐसे मातम नहीं हुआ जैसे अकबर के जाने पे हुआ है। कैसे मातम हुआ? आलिम दीन फरमाते हैं बीबियों ने करबला की मिट्टी से पत्थर उठाए, पत्थरों से मातम किया है। अकबर की फुफियों ने, अजरकुम अल्लाह, 10 मुहर्रम की रात है ना, पुरसा देना है। मुझे यकीन है मस्तूरात वाली तरफ आज जहरा भी आई होगी, ज़ैनब भी आई होगी, लैला भी आई होगी, यकीनन पुरसा लेने के लिए आए होंगे। आजादारों, जैसे ही अकबर सवार हुआ ना, जाने लगा बाहर, एक रोने की आवाज आई, किसी बच्ची ने रोना शुरू किया। जब अकबर ने मुड़कर देखा ना, हाथ बांध कर कहती है, अकबर मैं तेरी बहन सकीना हूं। बाकी बीबियों के कद बड़े थे, किसी ने तेरा सीना चूमा, किसी ने तेरी पेशानी चूमी। मैं तुझे ये नहीं कहती तू घोड़े से नीचे आ, एक बार रकाब से पैर बाहर निकाल, मैं तेरा पांव चूम लूंगी, मेरे लिए काफी है, मैं तेरे पांव को चूम लूंगी। अजरकुम अल्लाह। आजादारो, जवान घोड़े पे सवार हुआ, बाहर निकला है ना, जैसे ही घोड़ा चला, थोड़ी दूर घोड़ा जाता है, पीछे से आवाज आती है, अकबर मुझे शाम का कैदी समझा है, हर एक से मिला, मुझसे नहीं मिला है। ये पीछे अकबर ने मुड़कर देखा, जनाबे सज्जाद की कमर झुकी हुई है, रोकर कहा, अकबर मुझे भी मिलता जा। अजरकुम अल्लाह। अकबर वापस आया, अल्लाह जानता है खयाम की तरफ मुड़े हैं। उलमा फरमाते हैं अकबर ने सज्जाद को गले लगाया, इतना दोनों भाई रोए, अर्शे इलाही हिलने लगा। हुसैन जुदा करने की कोशिश करते रहे, भाई जुदा नहीं हो रहे। हुसैन ने कहा, मेरा अल्लाह, मैं गरीब हो गया। अजरकुम अल्लाह। भाई भाई से मिला, चल पड़ा। अली अकबर घोड़े पे सवार हुआ, दोबारा जैसे ही खयाम की, करबला की तरफ घोड़ा लेकर चला है ना, अली अकबर को थोड़ी दूर गया ना, एक शामी सिपाही ने देखा, उसने देखकर कहा, ओ जवान, मुझे पता नहीं है जो पीछे आ रहा है तेरा क्या लगता है, लेकिन जिस मोहब्बत से आ रहा है इसको मुड़कर देख तो ले। ये गरीब कभी करबला की जमीन पे गिरता है, फिर उठता है, रो रो कर कहते, अकबर तेरा बाबा गरीब हो गया। अजरकुम अल्लाह। अकबर घोड़ा लेकर वापस आए, अपने बाबा से मिले। हुसैन ने अकबर को गले लगाए, कई बार अकबर को अलविदा किया, लेकिन बाप था ना, जवान बेटा था अली अकबर जैसा, और जैसे ही दोबारा सवार कराया। आजादारों, अकबर फिर मैदान में आता है। मैदान में जब निकला है ना, हुसैन ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए हैं, मेरा अल्लाह, वो नौजवान जा रहा है जो तेरे नबी के मुशाबे है, खलकन भी, खुलकन भी, आदतन भी। मेरा अल्लाह, जब मुझे मुस्तफा की जियारत का शौक होता था, मैं अपने बेटे अली अकबर की जियारत कर लेता था। अजादारों, अकबर आया,
हाशमी नौजवान था ना, लड़ना शुरू किया, ओ जालिमो तुमने हमारे फला जवान को मारा, फला जवान को मारा, मैं अली अकबर हूँ, शबीह मुस्तफा हूँ। अकबर ने हमला किया, जालिम दूर तक भागते गए। एक बार उमर साद ने ऐलान किया, कब तक इस जवान को इजाजत देते रहोगे, मिलकर हमला कर दो। किसी ने अली अकबर को तीर मारा, किसी ने अली अकबर को तलवार मारी, किसी ने अली अकबर को पत्थर मारा। अज़ादारों शाम की फौजों ने अली अकबर को घेरा डाला, प्यासा अली अकबर दरमियान में है। एक जालिम ने छुप कर नेज़ा मारा, जो अकबर के सीने में लगा। अकबर संभल न सका, रोकर कहा, बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। उलमा फरमाते हैं हर शहीद ने हुसैन को मदद के लिए बुलाया है, लेकिन अकबर ने नहीं बुलाया है। कहा मेरा आखिरी सलाम हो, इसलिए कि अकबर जानता था मेरी मौत के बाद मेरा बाबा टूट गया होगा, मेरा बाबा मदद के लिए नहीं आ सकेगा। उलमा फरमाते हैं जैसे अकबर ने आखिरी सलाम किया, हुसैन ने भागना शुरू किया। जब भागने की ताकत खत्म हो गई, ज़हरा का बेटा कभी खाक पे गिरता है फिर उठता है, जब उठने की ताकत खत्म हो गई फिर ऐसे चलना शुरू किया जैसे 6 माह का बच्चा चलता है। रोकर का अकबर मुझे आने देना। अजरकुम अल्लाह। आजादारो, हुसैन बड़ी मुश्किल से पहुंचा अपने बेटे के लाशा पे। जब पहुंचा है क्या देखा है, एक काला बुर्का पहने मस्तूर अकबर के लाशा पे बैठी है, अकबर के चेहरा से खून साफ कर रही है। हुसैन ने पूछा कौन है, गरीब के बेटे के लाशा पे आने वाली उठी है बीबी, कहा मुझे पहचान, मैं ज़हरा हूँ, ओ मैं तेरी माँ फातिमा हूँ, मुझे पता था अकबर के लाशा पे तू आएगा। अजरकुम अल्लाह। जवानों, आज हुसैन को पुरसा देना है, अब मुझे माफ कीजिएगा। अब हुसैन ने अकबर का कैसे अकबर को उठाया और कैसे नेजा निकाला है जो अकबर के सीना में लगा हुआ था। मैं मुआफी मांगकर साहिब खुलासतुल मसाइब लिखते हैं, अकबर ने बड़ी मुश्किल से नेजा निकाला है। कैसे निकाला? अकबर ऐसे सीने अकबर का सहारा लिया, हुसैन ने दूसरे हाथ से नजफ की तरफ मुंह किया और कहा बाबा अली मेरी मदद को आइए। ऐसे नेजा निकाला, अकबर का कलेजा नेजा के साथ आ गया। अजरकुम अल्लाह। अब अकबर का लाशा बूढ़े बाप के लिए उठाना बड़ा मुश्किल था। या अली कहकर लाशा अकबर को उठाया, एक तरफ से उठाता है अकबर, दूसरी तरफ से जमीन पे चला जाता है। हुसैन बड़ी मुश्किल से खयाम के करीब पहुंचा, कहा गरीब बच्चों आओ मेरी मदद करो, अकबर का लाशा उठा लो। हुसैन आया खयाम के करीब, एक जुमला और आपकी ज़हमतों को तमाम लाशे अकबर को रखा है। जब बहुत सारे जवान किसी के मारे जाते हैं ना, उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। अब्बास कुम्मी फरमाते हैं एक तरफ अकबर का लाशा रखा, दूसरी तरफ कासिम का लाशा पड़ा था। एक हाथ अकबर के लाशा पे, दूसरा हाथ कासिम के लाशा पे, और रोकर कहा मेरा अल्लाह मैं इतना गरीब हो गया, ओ मेरा कासिम
अकबर भी मारा गया। फिर मस्तूरात को बुलाया, तमाम बीबियां आ गई लाशे अकबर के, वहां मोहम्मद आके बयान किए, वह अलिया, वह हुसैना, वह अकबरा कहकर रोती रही। एक उम्मे लैला है, अकबर की मां ने क्या किया, अकबर के सीना से खून लिया, अपने हाथों पे मला, अपने सर पे लगाना शुरू किया। हुसैन ने पूछा ये क्या कर रही है? कहा मैंने मन्नत मानी थी, जब अकबर की शादी करूंगी मैं सर पे मेहंदी लगाऊंगी। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वासयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदाया मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे आंसू आज़ादारी कबूल फरमा। मेरा अल्लाह शाहज़ादे अली अकबर का वास्ता, हुसैन की मज़लूमियत का वास्ता, या अल्लाह इन अज़ादारों की नेक दिली हाजात पूरी फरमा। मेरा अल्लाह इनका यहाँ आना अपनी इबादत में शुमार फरमा। या अल्लाह इनमें से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। या अल्लाह इन तमाम मोमिनीन व मोमिनात की हिफाजत फरमा, इनके घरों की हिफाजत फरमा, इनके बच्चों की हिफाजत फरमा, इनके बच्चों को सीरत अहले बैत पे चलने की तौफीक अता फरमा। मेरा अल्लाह तुझे शाहज़ादे अली अकबर का वास्ता हमारे बच्चों को इल्म जैसी दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह तुझे शाहज़ादे अली अकबर का वास्ता बे औलाद मोमिनीन को औलाद अता फरमा। बिलखुसूस हाजिरीन मोमिनीन मोमिनात में से कोई बे औलाद है तो औलाद अता फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज्जत व जलालत का वास्ता जहांगीर सैब और वजाहत सैब को शिफाए कामला व आजिला अता फरमा। अली हसन सैब को शिफाए कामला व आजिला अता फरमा। सैयद हैदर और सैयद आदिल को औलाद नरीना अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।